Praise the Lord once again. It is a joy for me to be with you. और सबको को प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से मेरे लिए एक बहुत बड़ा आनंद है कि मैं आपके साथ हूं। It is such a joy to be with Pastor Finney, Sister Priya, family, and all of you. As Pastor said, after several years, after around 13-14 years, we are able to be together in ministries. That also in Ranchi, it is such a joy. और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पास्टर फिनी, सिस्टर प्रिया, उनके परिवार और आप सभी के बीच में हूं। और जैसे पास्टर फिनी ने बताया है कि लगभग 14-15 साल के बाद एक साथ मिलकर के हम लोग सेवकाई कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। For this annual convention, as I told you in the first two sessions, I was seeking the face of the Lord as to what message I should bring before you. और जैसा मैंने पहले बताया था कि इस एनुअल कन्वेंशन के लिए मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि वो क्या हम सभी को सिखाना चाहते हैं। So John's Gospel chapter 1 and verse 9 is the verse that God has impressed in my heart. और यूहन्ना 1:9 को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। Once again, I want all of us to look at John's Gospel chapter 1 and verse 9. और एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग यूहन्ना उसके 1:9 को देखेंगे। At first I'll say that in English and then all of you together in Hindi, you must all read that together. और पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर हिंदी में एक बार उसे पढ़ें। The true light that gives light to every man was coming to the world. और सब मिलकर पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। We were looking at this verse in the last two sessions. और पिछले 2 सेशन में हम लोग इस वचन को देख रहे थे। What is the relevance of this verse in the context of John? और यूहन्ना में जो ये वचन लिखा हुआ है इसका संदर्भ क्या है? And also for all of us in this amazing life church, this is our 55th annual convention, what this verse means to us. और इस 55th एनुअल कन्वेंशन में ये वचन का हमारे लिए क्या मतलब है? I don't have time to go back to the two sessions. In 1 or 2 minutes, I'll just tell you what we were talking about. और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उन 2 सेशन के सारे बातों को आपको बताऊं, लेकिन 1-2 मिनट में मैं उन बातों को बताना चाहता हूं। In one word, John is writing about Jesus, the person Jesus. और एक जगह पे यूहन्ना जो है यीशु मसीह जो व्यक्ति थे उनके बारे में लिख रहा है। You might tell, yes, Pastor, all the Gospels are writing about Jesus. और आप ये बोल सकते हैं कि पास्टर सारे सुसमाचार तो यीशु के बारे में लिख रहे हैं। Matthew also is writing about Jesus. मत्ती भी यीशु के बारे में लिख रहा है। Mark also is writing about Jesus. मरकुस भी लिख रहा है। But Matthew focuses on the words of Jesus. लेकिन मत्ती जो है वो यीशु मसीह के वचनों के ऊपर ध्यान दे रहा है। Mark focuses on the works of Jesus, miracles. और मरकुस जो है वो यीशु मसीह के कामों के ऊपर ध्यान दे रहा है। Luke focuses on the mission of Jesus. और लूका जो है यीशु मसीह के दर्शन या मिशन के ऊपर The फोकस कर रहा है। person Jesus, who was Jesus? लेकिन ये यीशु कौन था? Not just works. ना सिर्फ उसके काम, Not just he healed few people. और ये नहीं कि उसने इतने लोगों को चंगा किया। That is the main theme of this gospel. और इस सुसमाचार का मुद्दा यही है। And we have seen 7 titles used for Jesus in chapter 1. और पहले अध्याय में 7 अलग अलग नाम यीशु को दिए Like गए। Jesus is the word. और यीशु मसीह वचन है। Jesus is the light. यीशु मसीह ज्योति है। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। Jesus is the Lamb of God. यीशु मसीह परमेश्वर के अकामेमना है। Jesus is the Messiah. यीशु जो है मसीहा है। Jesus is the King of Israel. यीशु इज़राइल का राजा है। Jesus is the Son of Man. यीशु मनुष्य का पुत्र है। John is an old man when he is writing this gospel. और जब इस सुसमाचार को यूहन्ना लिख रहा है तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका He है must be around 90 years. और लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं। After Jesus has gone up to heaven, और यीशु मसीह का स्वर्ग उठा लिए जाने के 60 बाद years have gone by. 60 साल बीत चुके हैं। From his memory and his reflection, he is writing, Jesus is not an ordinary person. और वो अपनी उन बातों को याद करके यीशु के बारे में ये लिख रहा है कि यीशु साधारण नहीं थे। And that is why in verse 9 it says, the true light that gives light to every man was coming to the world. और इसीलिए 9 में यूहन्ना लिखता है वो सच्ची ज्योति जो सारे मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। Now let's come to the third session. Let's look at that word true light. और अब इस तीसरे सेशन में आइए हम इस शब्द पे ध्यान दे,
सच्ची ज्योति। In John's Gospel, in several places, you will see the word true. True. और यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत सारे जगह पे आपको ये शब्द मिलेगा, सच्चा। Look at chapter 4 and verse 23. और 4:23 को यदि आप निकाल करके A देखेंगे, time is coming and has now come when the true worshippers, और उस जगह पे ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा, परंतु वह समय आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे। true worshippers. सच्चे भक्त, That means there are several worshippers. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे भक्त हैं There are fake worshippers. और बहुत सारे नकली भक्त There भी are हैं। worshippers who don't know what they are doing. और ऐसे भक्त हैं जिन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। John is saying, we don't want worshippers like that. यूहन्ना बोल रहा है हमें वैसे भक्त नहीं चाहिए, We don't want to see people, they don't know what they are doing. और हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। True worshippers will come. सच्चे भक्त आएंगे। In 1:9, true light. और जैसे 1:9 में है सच्ची In ज्योति, chapter 4:23, true worshippers. 4:23 में सच्चे भक्त, Now look at chapter 6:32. और 6:32 में अब देखिए, There it says, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। What is the true bread? और ये सच्ची रोटी क्या है? There are so many breads available in the market. और हो सकता है बाजार में बहुत सारे रोटियां मिल सकती But there is only one true bread. लेकिन सिर्फ एक ही सच्ची रोटी This है। is a reference to Jesus and his life. और ये यीशु और उसके जीवन के बारे में बताता है। What bread that we get from bakery, you have it, then again you will feel hungry. और जो रोटी हम खरीदते हैं उसे हम खाएंगे, लेकिन हमें फिर भूख लगेगी। Moses fed people in the desert. Every day they had to have fresh manna. और मूसा जब उन लोगों को उस मरुभूमि में ले जा रहा था तो हर दिन उन्हें मन्ना उठाना पड़ता था। But for Jesus, he is the true bread, meaning once you have him, you will not hunger again. He fulfills all your desires. लेकिन यीशु जो सच्ची रोटी है, जब आप उसे पाते हैं तो वो आपके सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। He is the true light, वो सच्ची ज्योति है, true worshippers, और उसके सच्चे भक्त हैं, true bread. और सच्ची रोटी। Now when you look at chapter 15 and verse 1, और यदि हम 15:1 को देखते हैं, I am the true wine. और मैं वो सच्ची दाखलता हूं। So the old man John is fascinated about true. और ये जो यूहन्ना है वो इस सच्चाई से और इस शब्द सच से उसे लगाव है। My dear people of God, और मेरे प्रियो, we are all together in this church right now. और इस कलीसिया में हम सब एक साथ बैठे हैं, We should know we have come close to truth. और हमें जानना है कि हम सच्चाई के करीब आए। This night we are coming close to truth. और आज की रात हम सच्चाई के करीब आ रहे हैं। This is not just a gathering. और ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, We are not here just for the sake of it. और हम सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं We are आए, not here just to celebrate, have food and go back. और हम यहाँ आनंद मनाने, खाना खाने और वापस जाने के We लिए नहीं are आए, near the true bread. और हम उस सच्ची रोटी के करीब We हैं, are near the true light. और हम उस सच्ची ज्योति के करीब You हैं। know what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? You will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। Any bondage that you talk about under the sun, और किसी भी ऐसे बंधन के बारे में यदि आप सोच सकते maybe हैं, curse in the family, चाहे वो परिवार में श्राप maybe no peace in the heart, हो सकता है दिल में कोई शांति ना हो, maybe sickness, और हो सकता है बीमारी हो, whatever it might be. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। This night I want you to know you are close to the truth. और आज की रात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सत्य के करीब हैं, You are close to the true light, आप उस सच्ची ज्योति के करीब हैं, true bread. उस सच्ची रोटी के करीब And हैं। God is expecting us to be true worshippers. और परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे भक्त बने, He is the true wine. और वो सच्ची दाखलता है। Only God is true according to chapter 17 and verse 3 of John's Gospel. और यूहन्ना 17:3 के अनुसार सिर्फ परमेश्वर ही वो सच्चे परमेश्वर Now है। this is the eternal life, that they know you, the only true God
God. और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। So only true God. और एकलौता सच्चा True परमेश्वर। God needs true worshippers. और सच्चे परमेश्वर के ही सच्चे भक्त हो That सकते हैं। true worshippers can only come with having true bread and coming to the true light. और सच्चे भक्त तभी बनते हैं जब वो सच्ची रोटी को खाते हैं और परमेश्वर के करीब In आते this हैं। annual convention, I want to invite all of you. और इस एनुअल कन्वेंशन में मैं आपका स्वागत करना चाहता In हूं। the city of Ranchi, God wants this church to be known as a church that manifests true light to the people around. और रांची के इस शहर में मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया परमेश्वर के सच्चे ज्योति को दिखाने वाला कलीसिया There बने। are many places where they get bread, और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां रोटी मिलती है, but people will get hungry again. लेकिन लोग फिर से भूखे होंगे। May Amazing Life serve true bread, लेकिन अमेजिंग लाइफ ऐसा जगह हो जो सच्ची रोटी को देता है। meaning Jesus has to be talked about and given from the pulpit. और इसका मतलब यह है कि यीशु के बारे में बात करना है और यीशु को लोगों को इस पुलपिट से दिया जाना है। This true we were talking about in the last session is talking about this is the ultimate, this is the final, this is the full revelation. और इस सच्ची ज्योति के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये वो संपूर्ण है, ये वो चरम है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। Now I want you to know, look at that verse, the second part of verse 9. और 1:9 के दूसरे भाग को आप देखिए। The true light that gives light to all men. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Giving light to all men. सारे मनुष्यों को प्रकाश देना। Now this word is an important word in chapter 1. और पहले अध्याय में ये वचन और ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। This true light and true bread is not for few people. और ये जो सच्ची ज्योति, सच्ची रोटी कुछ लोगों के लिए नहीं है, It is for all men. ये सारे लोगों के लिए। Look at chapter 1 and verse 4. और 1:4 में देखिए, In him was life, and that life was the light of, what is the next word? All mankind. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों, सारे मनुष्यों की ज्योति थी। In him, in Jesus was life. और यीशु में जीवन था। What is our church name? और हमारे कलीसिया का क्या नाम है? Amazing life. It starts with Jesus who has life. और इसकी शुरुआत, अमेजिंग लाइफ की शुरुआत यीशु से होती है जिसमें जीवन। In him was life. उसमें जीवन था। Is this life only for few people seated here? और क्या ये जीवन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो यहाँ बैठे हैं? 500, 800, 1000 people only in Ranchi? और 500, 800, 1000 लोग जो रांची में, क्या इतने ही लोगों के In लिए? him was life. उसमें जीवन था। This life is light for all men. लेकिन ये जो जीवन है ये सारे मनुष्यों के लिए ज्योति है। Look at 1:12. और 1:12 को देखिए, Yet to all who receives his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। Did you all see that? Yet to all who did receive him. और जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया। In this 55th annual convention, और इस 55th एनुअल God कन्वेंशन में wants us to have a bigger vision about mission of God. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो दर्शन है वो बड़ा दर्शन होने पाए यीशु मसीह के उस मिशन के बारे में। We have seen churches sometimes when they reach certain spheres, certain numbers, they will work among themselves. और मैंने ऐसे कलीसिया को देखा है जब एक संख्या तक वो पहुंच जाते हैं तो सिर्फ उनके बीच में ही वो काम It करने is लगते like reaching a target. और ये ऐसा है जैसे कि वो एक लक्ष्य तक पहुंचना We चाहते reach थे। this much and we will now babysit and take care of the people. और यदि हम इतने लोगों तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम सिर्फ उनके बीच में ही काम करेंगे। But here it says the life that Jesus has, the true light, it is for all men. लेकिन इस वचन में लिखा हुआ है कि जो जीवन यीशु मसीह में था ये जीवन सारे मनुष्यों के लिए है। Whether they respond or not is a different story. We'll talk about that tomorrow. और चाहे वो इसके बारे में हाँ बोली या ना बोली, ये दूसरी कहानी है, ये हम कल But देखेंगे। I want you to know, especially today, it was an amazing time. I was seated there and I was listening to the testimony. I was thanking the Lord. और ये आज एक अद्भुत समय मेरे लिए भी था जब मैं बैठ के गवाही को सुन रहा था और वहां मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। This true light is the light that gives
all men light to live. और ये सच्ची ज्योति वो ज्योति है जो सारे मनुष्यों को जीवन के लिए ज्योति Not देती है। for one class of people alone. और सिर्फ लोगों के एक झुंड के लिए नहीं, Not for educated people alone. और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, Not for poor people alone. सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं। Jesus has something to offer which is for all mankind. यीशु मसीह के पास कुछ ऐसा है जो सारे मनुष्यों के लिए है। Do you believe that, my dear people of God? क्या आप इस बात का विश्वास You करते हैं? have something in you which will work everywhere. और आपके पास कुछ ऐसा है जो हर जगह काम करने वाला है। There are people, there are servants of God who are not convinced about this. और कुछ ऐसे परमेश्वर के दास भी है जो इस बात का विश्वास नहीं करते। Brother, go share gospel. How will I share to them? और यदि उनको बोला जाए उनसे जाके सुसमाचार बांटिए, तो वो बोलेंगे उनसे मैं कैसे बांट सकता I हूं? don't mind going to this place, but to that place I am not going. मैं इस जगह जाने को तैयार हूं, लेकिन उस जगह पे मुझे नहीं लगता काम Have करेगा। you seen the marketing people coming to home? I don't know if the scenario is here, but in the place where I live, that scenario is very common. और मुझे रांची के बारे में पता नहीं, लेकिन जहां मैं रहता हूं ये बहुत होता है जब लोग आपके घर कुछ बेचने के लिए आते हैं, This marketing people will dress up and come and confidently knock. और उसके बाद ये लोग अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं और पूरे दृढ़ता और विश्वास के साथ कॉल बेल बजाते हैं। Last time also I have seen my mother was working in the kitchen, busy with kitchen, and when the calling bell came, she looked at, and it's a marketing person. My mom said, "No time, no time." और मेरी माँ जो है बहुत व्यस्त थी किचन में, और उसके बाद अचानक से वहां घंटी बजती है, वो जाती है और देखती है कि एक कुछ सामान बेचने वाला आया है। उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, चले जाओ। I was seated there to see what is going to happen. I know my mom. I know how the marketing people also will be. I waited to see what is going to happen. और मैं वहां बैठ के देखना चाहता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी माँ को भी जानता हूं, लेकिन मैं उन सामान बेचने वालों को भी जानता हूं My कि वो क्या mommy करते हैं। said, "I have no time. If you want to really come some other time. I don't have time." और मेरी माँ ने बोला कि आज मेरे पास समय नहीं है, यदि तुम आना चाहते हो तो फिर कभी आना। Marketing person is saying, "Amma, if you miss it today, you miss it." और उस व्यक्ति ने बोला कि माँ, यदि आप आज इस चांस को मिस कर देंगे, खो देंगे, तो आप पूरा खो देंगे। Because this is the last 2 pieces I have. और क्योंकि मेरे पास ये आखिरी 2 पीस है जो मैं आपको Look बेचने आया at हूँ। the bag. I want to sell this and go. और आप मेरे बैग को देख सकते हैं, सिर्फ 2 है, मैं इसे बेचकर घर In जाना the चाहता हूँ। morning, I started with full bag. और सुबह मैंने पूरा बैग भरकर मैं निकला Now I था, have only 2 more. और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। So I was observing my mummy is coming near. और मैं देख रहा था कि मेरी माँ अब थोड़ा नजदीक जा रही है। Kitchen, what happened? She is caught up now. और किचन को वो भूल गई, अब वो उसकी बात को सुन रही है। And this is like a frying pan. और Frying pan which the marketing person is selling is like Okay, yeah. frying pan. और वो जो सामान बेचने वाला था वो तवा बेच रहा था, फ्राई करने वाला। So I was thinking, mummy is slowly getting near. और मैं देख रहा था कि मेरी माँ धीरे धीरे और करीब जा रही है, And she opened already the first frying pan. She already opened. और उसने उस डब्बे को खोलकर मेरी माँ ने पहला जो तवा है वो निकाल के हाथ में ले लिया। And she is doing like solid. This is solid, Amma. और उसके बाद वो उसको ठोक के दिखा रहा है कि हाँ अम्मा, ये एकदम सॉलिड चीज है। My mummy said, "No, no, we have so many frying pans. We don't need." और मेरी माँ बोलने लगी कि नहीं नहीं, हम लोग के पास बहुत है, मुझे ये नहीं चाहिए। She said, "You can give it to others. उसने बोला कि आप इसे किसी और को दे You सकते can हैं, give it as gift. आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं। If you buy 2 together, then I will take only 1 frying pan's price." और यदि आप 2 एक साथ खरीदेंगे तो मैं सिर्फ 1 का दाम लूंगा। At the end, what happened? और अंत में क्या हुआ? We didn't need frying pan. हमें फ्राइंग पैन, तवे का जरूरत नहीं था, After few minutes, both the frying pan is on my dining table. लेकिन 2 मिनट के बाद दोनों जो तवा है मेरे डाइनिंग टेबल पे था। A marketing person. और वो सामान बेचने वाला We व्यक्ति, don't need it. और हमें जरूरत नहीं थी But उसकी, still, she was convinced that I can sell this product. लेकिन फिर भी वो जानता था कि मैं इस सामान को इन्हें बेच सकता हूँ। Do you know everybody under the sun, they are sinners.
और क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जो इस धरती पे जी रहा है वो पापी है, Everybody is in need of Jesus. और हर किसी को यीशु की जरूरत है। Jesus is the only true and the living God. और यीशु ही एकलौता और सच्चा जीवित He परमेश्वर है। is the true light. वो सच्चा ज्योति है, He is the true bread. वो सच्ची रोटी है। This evening, God wants to give you a power to share the gospel. और आज की शाम परमेश्वर आपको एक ऐसी ताकत देना चाहता है कि आप सुसमाचार प्रचार कर How सकें। many of you would say, I want that special anointing. I want to share the gospel to others. कितने लोग ये बोलना चाहते हैं कि मुझे वो अभिषेक चाहिए कि मैं सुसमाचार को दूसरों को I am सुनाऊं, lifting my hands with you. I need this. और मुझे भी ये चाहिए, मैं भी आपके More साथ than हाथ what उठा I रहा हूं, have, more than what I have, I need this. और जो मेरे पास है उससे बढ़कर मुझे ये अभिषेक You चाहिए। have an item which is relevant everywhere. आपके पास एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम करने वाली है। Look at another person. He is sick with sin. और यदि आप किसी को भी देखते हैं तो वो पापी है, Your neighbor is sick with sin. और आपका जो पड़ोसी है वो भी पाप से बीमार है, Hopeless. उसमें कोई आशा नहीं है, Helpless. उसके पास मदद नहीं है। You have come to the light. आप ज्योति में आ चुके हैं। When you go back from this convention, इस कन्वेंशन से जब आप वापस start लौटेंगे, praying now itself, Lord, help me to be a witness to the true light. अभी से प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि मैं सच्ची ज्योति का गवाह बनूं। This light is for everyone. ये ज्योति हर मनुष्य के लिए Look है। at that 1:9 once again. The true light that gives light to everyone was coming to the world. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। What kind of people needs this light? और कैसे लोगों को इस ज्योति की आवश्यकता है, Because it says light to everyone. और ये ज्योति जो यहाँ लिखा हुआ है हर मनुष्य के लिए। I am going to turn your attention to an interesting person in chapter 3. और यूहन्ना उसके 3 अध्याय में मैं आपका ध्यान एक व्यक्ति के ऊपर ले जाना चाहता हूं। I never thought a person like this needs this light. और मुझे नहीं लगता था कि ऐसे व्यक्ति को ये ज्योति की जरूरत पड़ेगी। I thought that person is good without true light. और मुझे लगता था कि ये व्यक्ति बिना सच्ची ज्योति के ही ठीक है। I thought he already has bread. मुझे लगता था कि उसके पास पहले से ही रोटी है। When I was reading chapter 1:9, John is saying the true light that gives light to every man. I never thought in chapter 3 man will come in this head. और जब मैं 1 अध्याय के 9 को पढ़ रहा था कि सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य के लिए है, मैं उसे पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ा 3 अध्याय में, मुझे नहीं लगा था इस व्यक्ति को उस ज्योति की जरूरत पड़ेगी। Look at chapter 3 verse 1 onwards, John's gospel. यूहन्ना 3 का 1 से देखिए। Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। Everybody say Nicodemus. सब कोई बोलिए निकोदेमुस। Nicodemus. Who was Nicodemus? और ये निकोदेमुस कौन था? There are 3 things mentioned in verse 1, chapter 3 verse 1. पहले अध्याय में उसके बारे में 3 बातें बताई गई। He was a Pharisee. वो एक फरीसी था। Who were Pharisees? और फरीसी लोग कौन थे? They will pray twice a day. Thrice a day they will pray. और दिन में वो 3 बार प्रार्थना करते थे। Twice a week they will fast. Twice a week. और सप्ताह में 2 दिन वो उपवास रखते थे। How many of you have the habit of fasting? Can I see your hands? कितने लोग उपवास रखते हैं? क्या मैं आपके हाथों को देख Every सकता Friday? हूं? हर फ्राइडे। Some of you. Boldly, can you lift your hands? You have the habit of fasting. और हिम्मत से हाथ उठाइए, कितने लोग उपवास रखते हैं? Excellent. This Nicodemus is a Pharisee. और ये जो निकोदेमुस है वो एक फरीसी था, Very spiritual man. और बहुत आत्मिक व्यक्ति, Twice a week fasting. और सप्ताह में 2 दिन उपवास, Thrice a day praying. दिन में 3 बार प्रार्थना। There were only around 5,000 Pharisees during Jesus' time. यीशु के समय में लगभग सिर्फ 5,000 फरीसी ही थे। Pharisee people studied scriptures very well. और फरीसी जो लोग थे वो वचन को बहुत अच्छे से अध्ययन They करते are not only praying people, but they are studying people. और वो प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, लेकिन वचन को पढ़ने वाले लोग के रूप में जाने Who was जाते थे। Nicodemus?
ये निकोदेमुस कौन था? He is a Pharisee. वो एक फरीसी। If Nicodemus was there in the meeting today, और यदि आज के मीटिंग में निकोदेमुस होता, if I see Nicodemus in the crowd, और यदि मैं निकोदेमुस को भीड़ में then देखता, I will say, sir, please preach. I will sit there. तो मैं हो सकता बोलता कि सर आगे आइए, आप प्रचार कीजिए, मैं Because बैठता हूं। I don't pray like you. क्योंकि मैं आपके समान प्रार्थना नहीं करना You know चाहता। Bible better than me. आप बाइबल को मुझसे बेहतर जानते हैं। Nicodemus is a special person. निकोदेमुस जो है वो एक खास व्यक्ति है। Some of us can connect with Nicodemus. और हम में से कुछ लोग हो सकता है निकोदेमुस को अच्छे से जान सकते हैं। In the church, when you come, others will say, oh, yo, this brother, he is very spiritual. और हो सकता है कलीसिया में जब आप आते हैं तो कुछ लोगों के बारे में बोल सकते हैं कि अरे हाँ, ये तो बहुत आत्मिक है। Sometimes we don't feel comfortable also sitting alongside with this Nicodemus people. और ऐसे निकोदेमुस जैसे लोगों के बगल में भी कई बार हमें बैठने में अजीब लगेगा। Somebody opens the Bible and all. I have seen in some places. Here I have not seen yet. I may see it. Some people will come inside. They see somebody with the Bible. They will not turn that way. They will turn the other way. और यहां मैंने वैसा नहीं देखा है, लेकिन कहीं और देखा है कि कलीसिया में लोग आते हैं, किसी को देखते हैं वो पहले से बैठ करके बाइबल खोल के बैठा हुआ है, तो उसके करीब नहीं जाएंगे लेकिन दूसरे तरफ चले जाएंगे। He will say, spiritual, spiritual. और वो मतलब अपने आप को बहुत आत्मिक मानने वाला व्यक्ति Some होता है। people, it is very interesting. They walk to a place and look at where is fan. They want to sit under a fan. और कुछ लोग चर्च में आते हैं और वो देखते हैं कि फैन कहाँ चल रहा है, वहां जाके बैठ जाए। In some places, people will look at pillar. They want to lean. और कुछ लोग चर्च जाएंगे और पिलर खोजते हैं, पिलर के पास जाके वो टेका लगा सके। Nicodemus is a very interesting person. और जो निकोदेमुस है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति He है। is a spiritual person. वो एक आत्मिक व्यक्ति है। Does he need true light? क्या उसे सच्ची ज्योति की आवश्यकता है? In 1:9 it says, true light gives light to every man. सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। But Nicodemus is a good man. लेकिन निकोदेमुस जो है वो एक अच्छा व्यक्ति He is है। a spiritual man. वो एक आत्मिक व्यक्ति है। Pharisee is not just one thing. Look at 3:1. There is another thing about him. और वो सिर्फ फरीसी नहीं था, लेकिन वहां एक और चीज लिखी हुई। He was a member of the Jewish ruling council. और वो यहूदियों का सरदार था। Not just Pharisee. और सिर्फ फरीसी नहीं था, Not just spiritual person. सिर्फ आत्मिक व्यक्ति नहीं था। He had position in the society. और उस जगह पे उसे ओहदा मिला हुआ था। Like these days we call the board of the church, board of the Bible college, board of the society. He is like the board chairman. और जैसे हम यहाँ बोलते हैं चर्च का जो बोर्ड कमिटी है, बाइबल कॉलेज का बोर्ड है, तो उसी तरीके से वो बोर्ड का चेयरमैन था। So the neighbors of Nicodemus, you know what they would say? Neighbors of Nicodemus. और निकोदेमुस के जो पड़ोसी थे वो क्या बोलते होंगे? Let's say when they are in the market of Ranchi, somebody will ask them, where are you staying? और हो सकता है यदि वो बाजार में अगर हो और कोई उनसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, Do you know Nicodemus, sir? Our house is next to Nicodemus. वो बोलेंगे क्या आप निकोदेमुस को जानते हैं, मेरा घर उसके बगल में। Same border. His fence and my fence, we are same. और हम लोगों का जो घेरा है वो एक ही है। Nicodemus' children, my children go to the same school. और निकोदेमुस के बच्चे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल जाते हैं। Nicodemus is a famous person. निकोदेमुस बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, Spiritual person. आत्मिक व्यक्ति था, Position person. और उसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा था। There is one more thing about Nicodemus in verse 10. Look at 3:10. और 3:10 में आप यदि देखें तो एक और बात उसके बारे में लिखी हुई। What is the third thing about Nicodemus? Can somebody tell me from the crowd? और क्या कोई बोल सकता है भीड़ में से वो कौन था? He is a teacher. Israel's teacher. और इज़राइल का सिखाने वाला गुरु था। You have heard of JNU, you have heard Jawaharlal Nehru University. और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। If there was a Jerusalem Bible College, JBC, और यदि एक जेरूसलेम बाइबल कॉलेज JBC होता, Nicodemus would have been the principal. और निकोदेमुस जो है वहां का प्रिंसिपल होता। Are you able to understand this person? क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा व्यक्ति He है? is a Pharisee. वो एक फरीसी है, He is a ruler.
वो एक अधिकारी था, He is the principal. वो उस जगह का प्रिंसिपल था, Principal of Jerusalem Bible College. जेरूसलम बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल था। And there is one more thing about Nicodemus which is not there in the Bible, but it is there in the extra biblical writings. और एक और चीज है निकोदेमुस के बारे में जो बाइबल में हम नहीं पाते, लेकिन उस समय के और दूसरे जो लिखावट है उसमें हमें He मिलती है। was one of the most wealthiest person in Palestine. और उस क्षेत्र का सबसे धनी लोगों में से वो एक था। He has money, उसके पास पैसा है, not just position, और उसके पास सिर्फ अधिकार not नहीं just respect. और सिर्फ सम्मान नहीं, He has money. उसके पास पैसा भी था। Now think about me, you and I, we are the marketing people for the true light. और अब हमारे बारे में सोचिए कि हम उस सच्ची ज्योति जो है उसके मार्केटिंग वाले लोग हैं। I have the bag. मेरे पास बैग है, What is there inside? और उसके अंदर क्या है? True light. उसके अंदर सच्ची ज्योति है। True light. सच्ची ज्योति मेरे बैग के True अंदर है। bread. सच्चा रोटी उसमें है। When I came to Nicodemus's house, no. I will go there, but not here. और निकोदेमुस के घर के सामने मैं ये सोचूंगा, नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं उधर जाऊंगा। Why he needs true light? उसे सच्ची ज्योति की क्या जरूरत है? Why he needs true bread? उसे सच्ची रोटी की क्या जरूरत He है? is a worshipper. और वो तो पहले से आराधना करता Why है। he needs true wine? उसे सच्चे दाखलता की क्या जरूरत है? But you know what Jesus told him? लेकिन आपको पता है यीशु ने उससे क्या When कहा? I was studying chapter 3, I got the shock of my life. और जब मैं तीसरे अध्याय को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा। Look at verse 3. Chapter 3, verse 3. 3:3 को यदि आप देखें, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। The same thing Jesus used another word in verse 5. In verse 3 it is seeing, in verse 5 it is no one can enter. और तीसरे अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 5वें अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Now first of all, now we have to think. Chapter 3:1 starts with a word. You all look at chapter 3 verse 1. It starts with, now there was a Pharisee. I don't know in Hindi whether you have it. Now there was a Pharisee. It doesn't come. So please supply that word. If you can translate this. Now there was a Pharisee. Okay. और यदि हम 3:1 में देखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है नाउ देयर वाज अ फरीसी, उसे जब हम हिंदी में देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि अब वहां एक फरीसी था। Why that now is important is chapter 2 ending, something is happening. और क्यों ये जरूरी है? क्योंकि दूसरे अध्याय के आखिरी वचन में कुछ हो रहा है। You know what is happening in chapter 2 verse 23 onwards? और 2:23 के आगे वहां पे क्या हो रहा है? Jesus did many miracles in Jerusalem. यरूशलेम में यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को Big किया, miracles. बड़े बड़े चमत्कार। And in chapter 2 verse 24 it says, 23 it says, many people saw the signs he was performing and believed in him. और 23 में ये लिखा हुआ है, 2:23 में, और बहुतों ने उन चिन्ह को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। Many people believed. बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। But in verse 24 it says, Jesus, he doesn't believe people. लेकिन 24 में ये लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ा। Literal translation is, Jesus will not give himself to them. और इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह अपने आप को उनको नहीं देना चाहता। So think about this. In Jerusalem, miracles are happening. सोच के देखिए कि यरूशलेम में चमत्कार हो रहे हैं। Many people believed. बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। Jesus is looking at the people who believed and saying, no, I don't believe you. और लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को देखकर जिन्होंने विश्वास किया तो वो बोल रहे थे, नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। That is when Nicodemus is coming to Jesus. और उस समय पे निकोदेमुस जो है यीशु मसीह के पास Most आता। probably Nicodemus believed in Jesus by seeing sign. हो सकता है कि निकोदेमुस ने भी यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर उन पर विश्वास किया। Especially to this Nicodemus, we will not give true light because already he came for the meeting. और क्योंकि हम तो खास तौर पे इस निकोदेमुस को और वो सच्ची ज्योति नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो मीटिंग के लिए आ चुका था। He is a Pharisee. वो एक फरीसी है, He is a rich man. वो एक धनी व्यक्ति He is है, a ruler.
वो एक अधिकारी He is है, a teacher. वो एक गुरु है, He has come to Jesus. वो यीशु मसीह के पास भी आ चुका है। Now, after coming to Jesus, what did Nicodemus say? लेकिन यीशु के पास आने के बाद निकोदेमुस ने क्या बोला? Look at verse 2. Everybody look at verse 2, chapter 3, verse 2. 3:2 को हर कोई देखिए। He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. No one could perform the signs you are doing if God were not with him. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। What is Nicodemus saying? निकोदेमुस क्या बोल रहा है? Jesus, you are a fake, bogus guy. यीशु आप जो है एक नकली व्यक्ति हैं। Is that what Nicodemus is saying? क्या ये बोल रहा है निकोदेमुस? He came to Jesus. वो यीशु के पास आया। This rich man is coming to Jesus. ये धनी व्यक्ति यीशु के पास आ Now रहे हैं। imagine, pastor here is Jesus. और कल्पना कीजिए कि मेरे सामने यीशु खड़े हैं। I am Nicodemus. ये निकोदेमुस है। I am going to Jesus. और मैं यीशु के पास आ रहा हूँ। And what am I telling him? और मैं क्या बोल रहा हूँ? Don't teach me anything. I am teacher. और मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं तो पहले से गुरु हूँ। Is that what Nicodemus is saying? क्या निकोदेमुस ये बोल रहा है? Nicodemus is saying, especially it is night, nobody is there. He is looking at Jesus and saying, nobody can do what you are doing. और रात का समय था और वो बोल रहा था निकोदेमुस यीशु से, आप जो कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता। I saw your miracle yesterday. कल मैंने आपके चमत्कार को देखा था। What a miracle. क्या चमत्कार था? I haven't done any miracle. I am a teacher. मैं एक गुरु हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया। I am a rich man. मैं धनी व्यक्ति हूं, But your miracle was astounding. लेकिन आपका जो चमत्कार था वो तो गजब था। If modern day Nicodemus has come to a preacher, what will happen? और यदि आज के वर्तमान समय में कोई निकोदेमुस एक प्रचारक के पास आएगा तो क्या होगा? Brother, your preaching translation was excellent. ब्रदर, आपका जो प्रचार और ट्रांसलेशन था गजब का था। What will happen? क्या होगा? Brother, thank you for your kind words. और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं। At least you got a revelation that I am an anointed man. और ये आपको तो पता चल गया एटलीस्ट कि मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति। Modern day preachers will say, where is your house? I want to come to your house. हो सकता है प्रचारक ये भी उनसे बोले कि आपका घर कहाँ है, मैं आना चाहता हूँ। Because he's a big shot. Nicodemus is a big shot. क्योंकि निकोदेमुस इतना धनी है, वो प्रचारक उसे अपने घर बुलाना चाहे। Modern day preachers will say, why did you come here? I would have come there. हो सकता है वो प्रचारक बोले, अरे आप मेरे पास क्यों आए, मुझे बुलाते मैं आ जाता। I can come to your home. Please go. Night. ओके, रात है, आप घर जाइए, मैं आ जाता हूँ। Sir, you have to go to the college tomorrow. I will come and see you. कल आपको पढ़ाने भी जाना होगा, मैं आके आपसे मिल लूंगा। What did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या बोला? I am Nicodemus. I am going to Jesus all the good things. और मैं निकोदेमुस यीशु के पास जा रहा हूँ, सारे अच्छी चीजों को बोल रहा हूँ। You are very nice. और आप बहुत अच्छे हैं। Jesus is looking at Nicodemus and say, brother, you will not go to heaven. और यीशु निकोदेमुस को देखकर बोलते हैं, भाई आप स्वर्ग प्रवेश नहीं करेंगे। Nobody can see the kingdom of God unless they are born again. कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता यदि वो नया जन्म ना पाए। Nobody can enter the kingdom of God unless they are born again. यदि कोई नया जन्म नहीं पाता है तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। You can imagine the condition of Nicodemus. कल्पना करके देखिए निकोदेमुस के हालत को। First time in his life, जीवन में पहली बार somebody is looking at his eyes. कोई उसे आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, All your money is nothing. तुम्हारा पूरा पैसा कुछ भी नहीं है। All your money, fame, name, nothing. जो तुम्हारी प्रसिद्धि है, पैसा है, सम्मान है, वो कुछ भी नहीं है। You are teaching Bible, but you have not entered the kingdom. Jesus is saying. यीशु उससे बोल रहा है, तुम पवित्र शास्त्र सिखा जरूर रहे हो, लेकिन तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं हो। The true light that gives light to every man was coming into the world. सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है, वो इस जगत में आ रही थी। In this har manusha, Nicodemus is there. और इस जगह पे निकोदेमुस है। Look at verse 3. और तीसरे अध्याय वचन में देखिए, Nobody can see the kingdom. और कोई परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। Nobody can enter the kingdom. कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। So where is Nicodemus now? और निकोदेमुस अब कहाँ है? Outside. वो बाहर है। You haven't seen.
उसने देखा भी नहीं है, You haven't entered. उसने प्रवेश भी नहीं किया है। Without entering kingdom also we can have money. और बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए भी हमारे पास पैसा हो सकता है, Yes or no? हाँ या नहीं? Or only people who enter the kingdom of God will have money. और क्या सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लोगों के पास ही पैसा रहता है? We have to just look around. हमें सिर्फ अपने चारों ओर देखना है। In the city of Ranchi, people who haven't entered the kingdom of God, so many people have money. और रांची के शहर में इतने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है लेकिन बहुत धनी है। Nicodemus is man with lot of wealth, but he's outside of the kingdom. निकोदेमुस एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है लेकिन वो परमेश्वर के राज्य He के is बाहर है close to the true light. और वो सच्ची ज्योति के करीब है। But there is a problem here. लेकिन यहाँ पे एक समस्या है How many of you are with me? Can I see your hands? कि जितने लोग मेरे साथ हैं अपने हाथ को दिखा सकते हैं। You know, when did Nicodemus, when did he come to Jesus? What time? और किस समय में निकोदेमुस यीशु के पास आया था? रात. In 3:2 it says, in the night. और 3:2 में लिखा हुआ है रात के समय। In John's gospel, night is a very important subject. और यूहन्ना के सुसमाचार में ये जो रात है ये एक बहुत मुख्य विषय है। This rat is not just what you see outside now. और ये वो रात नहीं है जो आपको अभी बाहर दिखाई दे। Nicodemus came to Jesus and maybe 9 o'clock he came. That is not the idea here. और यहाँ पे हो सकता है निकोदेमुस रात के 9 बजे आया होगा यीशु के बारे में, लेकिन ये रात उस समय के बारे में नहीं बात कर रही। And now we imagine maybe he had a torch or a candle. How did he come? और अब आप कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है उसके पास टॉर्च होगा, मोमबत्ती होगा, कैसे हुआ? That is not the idea here. लेकिन ये रात शब्द इसके बारे में भी बात नहीं कर। To understand that, you have to read 13 verse 30. Chapter 13 verse 30. 13 verse 30. यूहन्ना 13 के 30 को आपको पढ़ना होगा यदि आप There इसको समझना one of चाहते हैं। Jesus's disciples named Judas was there. और वहां पे एक चेला जो यीशु मसीह का है जिसका नाम यहूदा था। How many of you know Judas? कितने लोग यहूदा को जानते हैं? Yes, Judas. सारे लोग जानते हैं। Good brother. बहुत अच्छा भाई था। Yes. हाँ, He had the money bag. उसके पास पैसे का थैली होता था। Who will entrust money? Who will make him a treasurer? Imagine. कल्पना करके देखिए कि वैसे व्यक्ति को कौन अपना खजांची बनाए। Judas was handpicked by Jesus. और यीशु मसीह ने यहूदा को खुद चुना था। Nobody understood that he is, in chapter 6 it says he is a devil. और किसी को यह नहीं पता था कि 6वें अध्याय में लिखा हुआ है वो शैतान था। When Jesus' worship team happens, Judas is also there. और यीशु मसीह की जब आराधना चल रही होती थी यहूदा भी वहां रहता था। In chapter 13, Jesus said, one of you will betray me. 13वें अध्याय में यीशु ने बोला तुम में से एक मुझे धोखा देगा। Did everybody look at Judas? He's talking about you. He's talking about you. क्या सारे लोग यहूदा को देखने लगे? Nobody looked at Judas. और किसी ने यहूदा को नहीं देखा। Everybody is saying, am I? सारे लोग पूछ रहे थे क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं? Judas is a very cunning guy. और यहूदा जो था एक बहुत ही चतुर और धूर्त He has व्यक्ति the था। face of a spiritual man. और आत्मिक व्यक्ति के समान वो अपने आप को दिखाता In था। 13 verse 30, something is there. Look at 13:30. यूहन्ना 13 के 30 को आप देखिए। As soon as Judas had taken the bread, he went out. He is going from the light. He is going from Jesus. And John is writing 3-4 words there. And it was night. और जब यीशु ने उस रोटी के टुकड़े को उसे दिया तो लिखा हुआ है वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और वहां पे यूहन्ना इस बात को लिखता है यह रात्रि का समय था, रात का समय था। What is Rat? ये रात क्या है? It's not just 9 p.m. और ये सिर्फ रात का 9 बजे का समय नहीं है। Night is talking about a man's mental state. और ये जो शब्द रात है ये एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहा A है। person's spiritual condition. एक व्यक्ति के आत्मिक हालत के बारे में बात कर रहा है। Nicodemus came to Jesus in the night. निकोदेमुस यीशु के पास रात के समय आया। That shows his spiritual condition.
और ये उसके आत्मिक दशा को दिखाता है। That is why Jesus said, you have to be born again. इसीलिए यीशु ने उससे कहा तुम्हें नया जन्म पाना जरूरी है। All those of you who are listening to me here and in the ground floor, और जितने लोग मुझे यहां सुन रहे हैं और जो नीचे बैठे हैं उन सारे लोगों के लिए, we have come to the meeting, that is true. और जरूर हम इस मीटिंग में आए हैं। We are all spiritual people, that is true. जरूर हम आत्मिक लोग हैं, ये भी सच है। We all sing songs, that is true. हम सब गाना गाते हैं, ये भी सच है। But it is possible that some of us are still in the night. लेकिन ये संभव है कि हम में से बहुत सारे लोग अभी भी रात में The हैं। true light came to give light to everyone, सच्ची ज्योति सारे मनुष्यों को ज्योति देने के लिए आई, including Nicodemus. और वो निकोदेमस के लिए भी था। But in our opinion, Nicodemus doesn't need light. He has already wealth, health, everything. लेकिन कई बार हमें लगता है उसे तो ज्योति की जरूरत नहीं है, उसके पास पैसा है और सब कुछ है। Look at chapter 9 verse 4. Another mention of night in John's gospel. और यूहन्ना 9:4 में आप देखिएगा कि फिर से रात के समय के बारे में बात As किया गया। long as it is a day, we must do the works of him who sent me. Night is coming. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, Night is coming. रात आने वाली है। Is it talking about 10 p.m.? और क्या ये 9 बजे के बारे में बात कर रहे हैं? No, it is talking about Jesus is saying, I am with you now. I will go. His public ministry will end. Night represents time without immediate Jesus' presence. और यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं उठा लिया जाऊंगा। रात का मतलब है कि यीशु मसीह उस जगह पे उन लोगों के लिए नहीं रहने वाले हैं। Are you understanding what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? Nicodemus came to Jesus in the night. निकोदेमुस यीशु के पास रात को आया। Judas went out and it was night. यहूदा जब बाहर गया तो वो रात का समय In था। 9:4, night is coming. और 9:4 में लिखा हुआ है रात आने वाली है। Look at chapter 11 verse 10. 11:10 को यदि आप देखते It हैं, is when a person walks at night that they stumble. और यहां लिखा हुआ है यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। For they have no light. In the night they stumble. उनमें प्रकाश नहीं, वहां कोई ज्योति नहीं, रात में वो ठोकर खाते Is हैं। it talking about literal night? क्या वो ऐसे अंधकार वाले रात के बारे में बात कर That रहे हैं? everybody knows. If I go down without light, I will fall. Everybody knows. ये बात तो सब जानते हैं कि यदि मैं बाहर बिना टॉर्च के जाऊं तो गिर जाऊंगा। This is talking about spiritual condition. लेकिन ये जो रात है ये आत्मिक दशा के बारे में बात कर रही है। If Jesus, the true light, did not invade our life, we will stumble. यदि यीशु जो सच्चा प्रकाश और ज्योति है हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो जरूर हम ठोकर खाएंगे। Even after attending meeting, we will stumble. मीटिंग में आने के बाद भी हम ठोकर खाएंगे Life transformation will not happen. और हमारे जीवन का जो बदलाव है वो नहीं होगा। Look at chapter 12, verse 35-36. और 12:35 और 36 को देखिए। I want this to go in your mind. और मैं चाहता हूं कि ये आपके मन में ये वचन घुस जाए। Underline and think about this. The true light came to give light to everyone, but the problem is night is there. और सच्ची ज्योति आई कि हर मनुष्य को प्रकाश दे, लेकिन समस्या यह है कि रात चारों ओर है। Chapter 12, 35-36. You are going to have light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. और 12:35 ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। Who all needs the true light? किसको सच्ची ज्योति की जरूरत है? Amazing Life Church, listen to me tonight. और अमेजिंग लाइफ चर्च आज मेरी बात को सुनिए। Jesus is the true light. यीशु वो सच्ची ज्योति है The culmination, the climax, the ultimate. Jesus is the one. और वो संपूर्णता है, वो चरम है, वो परिपूर्णता है। But who needs this true light? लेकिन इस सच्ची ज्योति की किसको जरूरत है? 1:9 says everyone will need this light. और ये वचन कहता है कि हर मनुष्य को इसकी जरूरत है।
And that is when in chapter 3, a good man Nicodemus is coming to Jesus in night. और इसीलिए तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति जो निकोदेमुस है वो यीशु के पास रात में आ रहा। Do you want to know? Do you want to see how much night has affected his mind? You want to see? और क्या आप देखना चाहते हैं कि उस रात के अंधकार ने उसके दिमाग को किस हद तक प्रभावित किया है? In chapter 3 verse 3, Jesus said, you have to be born again in order for you to see the kingdom of heaven. 3:3 में यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म पाना है यदि तुम परमेश्वर का राज्य देखना चाहते हो। In verse 4, you know how Jesus, Nicodemus, how did he respond? और चौथे वचन में आप देख सकते हैं कि निकोदेमुस ने क्या बोला। Again, picturize with me. I am Nicodemus. I am going to Jesus. और फिर से कल्पना कीजिए, मैं निकोदेमुस हूं, मैं यीशु के पास जा रहा हूं। You are a good healer. और आप एक बहुत अच्छे चमत्कार करने वाले। Jesus is telling me, brother, you have to be born again. और यीशु मसीह बोल रहे भाई आपको नया जन्म पाना जरूरी है। This big bada bhai, you know what is he telling Jesus? और ये जो बड़ा भाई है ये यीशु से क्या कह रहा है? So I have to get into my mother's womb again and come out? और मुझे फिर से क्या अपने माँ के कोख में जाकर के जन्म लेना होगा? He is a teacher. और ये निकोदेमुस एक टीचर है, गुरु है। Some teachers are like this. और कुछ गुरु जो है ऐसे होते हैं। When people see, they have money, they have knowledge, they have everything. जब लोग देखते हैं तो उन्हें दिखता है उसके पास पैसा है, ज्ञान है, सब कुछ है। Nice clothes. अच्छे कपड़े हैं। If Nicodemus comes in, then everybody will turn, from where is this coming? Nice perfume. और यदि निकोदेमुस यहाँ आएगा तो लोग सूंघ करके बोलेंगे बहुत अच्छा महक रहा है, कौन सा परफ्यूम है? If Nicodemus's wife comes and sit, then all the ladies will be, from where this sari? Which shop in Ranchi? और यदि निकोदेमुस की पत्नी आएगी तो सारी औरतें मुड़कर देखेंगी, अरे इतना अच्छा साड़ी कहाँ से खरीदे? When Nicodemus's children comes, which school are they studying? Nice English. और निकोदेमुस के बच्चे यदि आएंगे तो सारे लोग पूछेंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इतना But अच्छा you इंग्लिश see बोलते हैं। his spiritual condition. लेकिन उसकी आत्मिक दशा को देखिए। Jesus told him, you have to be born again. यीशु मसीह ने उससे बोला कि तुम्हें नया जन्म पाना होगा। Oh sir, I have to get into mother's womb and come out. और फिर से मुझे माँ के कोख में जाके जन्म लेना पड़ेगा। New birth experience is already prophesied in the Old Testament. और नए जन्म का जो अनुभव है वो पुराने नियम में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। Jesus is telling in chapter 3 and verse 5, you have to be born of water and spirit. और यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। What is this water and spirit? और ये आत्मा और जल क्या है? It is from Ezekiel 36 verse 25 to 27. और यहेजकेल 36 के 25 से आगे ये लिखा हुआ है। There Ezekiel prophet said, a time is coming when God will put his spirit inside of a person and he will cleanse the person. Water represents cleansing power. और यहेजकेल वहां कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर अपनी आत्मा को मनुष्यों के अंदर डालेंगे और उसके द्वारा उन्हें शुद्ध करेंगे। ये जो जल है वो शुद्धिकरण को दिखाता है। This Nicodemus is a teacher, he has no understanding. और निकोदेमुस जो गुरु है उसे इन बातों का कोई समझ नहीं। You have to be born again. Brother, why? How? और जब यीशु बोले तुम्हें नया जन्म लेना है वो पूछ रहे हैं कि कैसे, क्या होगा? You have to be born of water and spirit. I didn't understand. Water, tea, coffee. He has no understanding. और जल से जन्म लेना होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं? But he is in the meeting. लेकिन वो मीटिंग में है, He is clapping hands. वो ताली भी बजा रहा है, But no understanding. लेकिन कोई समझ नहीं है। He is singing songs. वो गाना भी गा रहा है, He is teaching in a Bible college. वो बाइबल कॉलेज में सिखा भी रहा But है, the true light did not lighten him yet. लेकिन सच्ची ज्योति ने अब तक उसे प्रकाश नहीं दिया। God wants us to know, dear church. और कलीसिया, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने। In this annual convention, God, the true light, He wants to lighten all of us. और इस एनुअल कन्वेंशन में यीशु जो सच्ची ज्योति है हम सभी को प्रकाश देना It is चाहते हैं। for everyone.
और वो चाहते हैं कि सारे लोगों में प्रकाश Whether हो। you are a rich man, you need this light. चाहे आप धनी हैं, आपको ये ज्योति चाहिए। Whether you are a poor man, you need this light. चाहे आप गरीब हैं, आपको ये ज्योति चाहिए। You know scripture, still you need this light. यदि आपको वचन पता है, तब भी आपको ज्योति You are चाहिए। sick person, you need this light. यदि आप बीमार हैं, आपको ज्योति चाहिए। You must allow the true light to give light inside your heart. उस सच्ची ज्योति को आपके हृदय में प्रकाश देने का आपको अनुमति देना है। Jesus was shocked by his mental spiritual condition. और निकोदेमुस के आत्मिक और मानसिक हालत को देख करके यीशु मसीह शॉक थे। Verse 10 says, you are Israel's teacher. 10 में यीशु बोलते हैं, तू इजराइलियों का गुरु है। And do you not understand these things? और गुरु होकर क्या इन बातों को नहीं समझता? नहीं समझता. Jesus is asking Nicodemus, नहीं समझता. And Nicodemus is again. What did Nicodemus say after that? इसके बाद निकोदेमुस ने क्या बोला? Tell me, look at your Bible and tell me. Jesus told him, do you not understand these things? This is sad, Nicodemus. You have wealth, you have spirituality, you have Bible. You don't understand these things. और After- यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र का समझ है, लेकिन फिर भी क्या तुम नहीं समझते? After that, what did Nicodemus say? इसके बाद निकोदेमुस ने क्या बोला? आप बाइबल में Let देखिए। me see who is the smartest here in the whole. I know people are sitting down also. I cannot hear you, but let me hear from here. What did Nicodemus say after that? इसके बाद निकोदेमुस ने क्या बोला? किसके पास जवाब है? कौन है स्मार्ट? If you look at me, you will not answer. You have to look at your Bible. यदि आप मुझे देखेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। बाइबल में देखिए कि फिर निकोदेमुस ने क्या What बोला? did Nicodemus say? क्या बोला निकोदेमुस ने? No answer. किसी के पास जवाब नहीं। That means all of you are smart. इसका मतलब ये है कि आप सभी स्मार्ट हैं। Nicodemus did not answer anything. निकोदेमुस ने कुछ नहीं बोला। That is the last thing that you hear about Nicodemus. In chapter 3, Nicodemus just disappears. और ये तीसरे अध्याय में इसके बाद निकोदेमुस वहां से गायब हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। My imagination was Nicodemus would have got angry with Jesus. और मेरी कल्पना में मैं कल्पना कर रहा था निकोदेमुस यीशु से गुस्सा हो गया होगा। Hey, Rabbi, I came to appreciate you and you are telling me I am out of your kingdom. I don't want your kingdom. और मैं तो आपकी तारीफ करने के लिए आया, आप बोल रहे हैं मैं आपके राज्य के बाहर हूं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। Maybe in my imagination, Nicodemus would have told, one day you will come in Jerusalem. I'll show you who I am. और हो सकता है मैं कल्पना कर रहा था कि एक दिन निकोदेमुस ने बोला कि एक दिन यीशु तुम्हें जेरूसलम आना होगा, देख लूंगा मैं। Just because I came to you, you are mocking at me. I am JBC's headmaster. और क्योंकि मैं आपके पास आया हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जेबीसी का हेडमास्टर हूं। But Nicodemus, nothing he says. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं निकोदेमुस ने कुछ नहीं बोला। Why it is like that? क्यों ये ऐसा है? John, the old man, is writing this story with an intention. और यूहन्ना जो अब इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, वो किसी खास कारण से इसको यहां लिख रहे हैं। You have to picturize in your mind what happened to Nicodemus. That is why John is not writing it. और आपको कल्पना करना है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए यूहन्ना आगे नहीं लिख रहा। Do you see Nicodemus anywhere in John's gospel after chapter 3? और तीसरे अध्याय के बाद क्या आप निकोदेमुस को कहीं और इस सुसमाचार में देखते हैं? Anywhere do you see? क्या आपको वो दोबारा दिखाई देता है? Some of you already told no, कुछ लोगों ने पहले बोल दिया नहीं दिखाई देता, and you are wonderfully wrong. और आप बहुत अद्भुत तरीके से गलत हैं। You see Nicodemus in chapter 7. और 7वें अध्याय में हम निकोदेमुस को फिर से देखते Look at chapter 7, verse 50. हैं। और 7 का 50 में हम उसे देखते हैं। You know what happens in chapter 7, the previous verses? और पिछले वचनों में क्या हुआ? Jewish people sent temple guards to arrest Jesus. और यहूदी लोग वहां पे सैनिकों को भेजते हैं कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करें। But you know what these temple guards have done? और वहां पे जो सैनिक गए थे वो क्या बोलते हैं? They wanted to arrest Jesus. They went, they saw Jesus, they observed Jesus.
और वो गए वहां यीशु को गिरफ्तार करने, लेकिन वहां खड़े होकर उसे देखने लगे। He is healing people. वो ये लोगों को चंगा कर रहा He था is speaking with authority. और वो अधिकार के साथ लोगों को सिखा रहा Temple था। guards just came like that. They did not arrest Jesus. और वो जो सैनिक थे वहां वो सब देख के वापस आ गए, उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं Jewish people, they got upset with temple guards. किया। और वो जो यहूदी लोग थे उन सैनिकों से पे क्रोधित हो गए। Why did we send you? क्यों भेजा था हमने To तुम्हें? arrest Jesus. उसे गिरफ्तार करने के लिए। You are coming back without arresting him. What is wrong with you? और बिना उसे पकड़े तुम वापस आ रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? Temple guard said, no, he is not a normal person. Jesus is like a superman. He is talking. We don't want to arrest him. और नहीं, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो बहुत अद्भुत है, हम उसे गिरफ्तार कैसे करते? That time you will see Nicodemus, 750. और 7:50 में वहां आप फिर से देखते हैं निकोदेमुस। You know what is Nicodemus doing in that scenario? और इस जगह पे निकोदेमुस क्या कर रहा है? Nicodemus who had gone to Jesus earlier. निकोदेमुस जो पहले यीशु मसीह के पास गया था, He who was one of their own number, he is asking his fellow rulers, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जो जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? What is Nicodemus doing? यह निकोदेमुस क्या करने की कोशिश कर रहा है? He is member of the ruling council. और वो उस जगह पे अधिकार करने वाले अधिकारियों का भाग था। They are all sitting. एक साथ वो बैठे हुए हैं। They are all upset. They didn't arrest Jesus. और वो परेशान है कि सैनिकों ने यीशु मसीह को पकड़ा नहीं। Nicodemus is telling his friends, are we doing the right thing? और निकोदेमुस अपने दोस्तों से बोल रहे, क्या हम सही कर रहे हैं? We want to catch Jesus. We want to condemn Jesus. But first we have to hear about Jesus, right? हम उसे पकड़ना चाहते हैं, हम उसे दोषी ठहराना चाहते हैं, लेकिन पहले क्या हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? What happened to Nicodemus? क्या हुआ निकोदेमुस के साथ? What happened? क्या हुआ? He went to Jesus earlier. और पहले वो यीशु के पास गया था। He went to Jesus at night. वो रात में गया था His spiritual condition was bad. और उसका आत्मिक दशा उस समय बुरा था। But there is something about true light. लेकिन सच्ची ज्योति के बारे में कुछ तो अद्भुत है। Once you encounter him, एक बार यदि आपका उससे सामना होता है, your life will never be the same again. आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह जाएगा। True light will change you. सच्ची ज्योति आपको बदल देगी। In chapter 3, Nicodemus is not saying anything. तीसरे अध्याय में निकोदेमुस आगे कुछ नहीं बोलता है। My imagination is when Jesus told Nicodemus, you don't know these things. My imagination is और मेरी कल्पना में जब यीशु मसीह उसको बोलते, क्या तुम्हें ये सारी बातें नहीं पता? Nicodemus just went like that. और निकोदेमुस हो सकता है सिर्फ मुड़ करके ऐसा चला गया। Maybe on the way, Nicodemus is thinking, why am I like this? और हो सकता है रास्ता में निकोदेमुस सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? I know Bible. मैं बाइबल को जानता हूं, But this man looked at my eyes and said, I will not go to heaven. लेकिन इस यीशु ने मेरे आंखों में देखकर मुझे बोला, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। I feel humiliated. और मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। I feel sad. मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। My imagination, that day he went to his home at night. और मेरी कल्पना में मैं कल्पना कर रहा हूं कि वो हो सकता है अपने घर गया होगा रात में, Wife is opening the door. और पत्नी ने दरवाजा खोला होगा। Big president is coming in. एक बड़ा प्रेसिडेंट अंदर आ रहा है Straight away to the easy chair. और जाकर के वो अपनी कुर्सी में बैठ गया होगा। Children are playing, और बच्चे खेल रहे होंगे, but face is very serious. लेकिन उसका चेहरा बहुत गंभीर है। After 1 or 2 hours, wife is coming. What happened? Here, how do you call your husband? I don't know. So in my place, they will call either sometimes Dada. They call father Dada or Acha or whatever. What happened to you? और हो सकता है 1-2 घंटे के बाद, क्योंकि वो इतना गंभीर बैठा हुआ होगा, पत्नी आकर के पूछ रही होगी, क्या हुआ आपको? Because she has not seen Nicodemus like this. और क्योंकि उसने पहले कभी निकोदेमुस को ऐसा नहीं देखा। Every day Nicodemus will come, play TV for some time. और हो सकता है हर दिन निकोदेमुस आता होगा, बैठ करके कुछ देर टीवी देखता होगा, Coffee de do. और कॉफी मांगता होगा, कॉफी लाओ। Coffee lao. But tonight, no coffee, लेकिन आज उसने कॉफी नहीं मांगी, no TV. कोई टीवी नहीं देख, He's just sitting there. और वो सिर्फ वहां बैठा हुआ है। Children have gone to sleep. और बच्चे सोने चले गए, Wife is thinking, what happened? और पत्नी सोच रही क्या हो गया इससे। She is coming and testing
Everything okay? और वो आकर के हो सकता है देख रही हो कि क्या सब कुछ ठीक है इसके साथ, Just pain or something? और क्या दिल में दर्द है या नहीं। After a few questions, Nicodemus says, I'm okay. और कुछ सवालों के बाद निकोदेमुस ने बोला कि मैं ठीक हूँ, But something happened to me. लेकिन आज मेरे साथ कुछ हुआ। I went to a person. मैं एक व्यक्ति के पास गया It was like entering a ICU scenario. और आईसीयू में जाने के जैसा था। How many of you here have done an MRI? कितने लोगों का एमआरआई हुआ है, एमआरआई टेस्ट? Nobody? You're all? One person, two person. I have also done an MRI. और मेरा भी एमआरआई हुआ है। That is a very different experience, I'm telling you. और बहुत ही अलग अनुभव होता है। You put a person into a machine. और एक मशीन के अंदर आप उस व्यक्ति को डालते हैं, Cannot move. You are like this. You are into that machine. आपको घुसा दिया जाता है, आप हिल भी नहीं सकते, And you only see lights around of you. और आपके चारों ओर आपको सिर्फ वहां पे लाइट दिखाई It's a दे। very intimidating, frightening moment. बहुत डराने वाला होता है। That is what happened to Nicodemus. और निकोदेमुस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। He went to Jesus in the night, रात में यीशु मसीह के पास but गया, he went to the true light. लेकिन उस सच्ची ज्योति के पास गया। Full scanning happened. पूरा स्कैन हो गया, He went out and he cannot sleep. और अब वो वापस जाके सो नहीं पा रहा। And next day, this thing is happening. और अगले दिन ये हो रहा है, Everybody want to arrest Jesus. और हर कोई यीशु मसीह को गिरफ्तार करना Because चाहता है। of that inward struggle, Nicodemus is saying, no, let's not do that. Let's first hear from Jesus. Then only let's arrest him. लेकिन जो निकोदेमुस के अंदर हो रहा था, इसके कारण वो बोलता है कि पहले हमें उसकी बात सुननी चाहिए, फिर गिरफ्तार When करना। Nicodemus told this, what did his contemporary, what did his colleagues say? What did his colleagues say? और जब निकोदेमुस ने ये बोला तो उसके जो दोस्त थे अधिकारी, वो क्या बोल रहे थे? In chapter 7, verse 52, 7 के 52 में what did he say? One of you here, read it aloud, chapter 7, 52. और 7 के Let's give 52 a को chance to them. कोई One एक of you, जोर से read पढ़े। aloud, full voice. तू भी गलील का, are you also a Galilean? क्या तू भी गलीली है? They are all Jewish ruling council. और ये सारे लोग यहूदी अधिकार करने वाले थे। They are all from Jerusalem. ये सारे लोग यरूशलेम से थे। They have that pride. We are from Jerusalem. उनमें ये घमंड था कि हम यरूशलेम से हैं। Galilee is like second class citizens. और जो गलील है वो दूसरी श्रेणी का वो जगह था। What will happen if true light comes and hits you? और क्या होगा जब सच्ची ज्योति आकर आपसे टकराएगी? Struggle inside happens. संघर्ष तो होगा अंदर। Then you will begin to speak about Jesus. तब आप यीशु के बारे में बोलना शुरू करेंगे। We should not arrest Jesus. हमें यीशु को गिरफ्तार नहीं करना। Everybody is turning. Are you Galilean? सब उससे बोल रहे हैं, क्या तू गलील का है? What would be Nicodemus's feeling now? अब निकोदेमुस क्या महसूस कर रहा होगा? Oh my God. I am a teacher. अरे मैं तो एक गुरु हूं, I am a wealthy man. मैं एक धनी व्यक्ति हूं। All these contemporaries, colleagues, I brought them to this ruling council. और ये जितने लोग मेरे साथ बैठे, मैंने ही उन्हें यहां तक लाया। His children's fees I gave. और उसके बच्चों का फीस मैंने दिया था। For him I bought that Wagoner car also. और उसके लिए मैंने वो वैगनार कार भी खरीदा। Now all are against me. और ये सब अब मेरे विरोध में खड़े हो गए। True light will lighten everyone. सच्ची ज्योति सब पे प्रकाश को डालेगी। But what will happen to the people who come to light? लेकिन जो ज्योति के पास आएंगे उनके साथ क्या होगा? These days people are preaching, you come to light, you will have Innova. और आज के दिन में ये प्रचार हो रहा है कि आप ज्योति के पास आइए, आपको इनोवा मिलेगा। Innova is not a bad car. Innova is a good car. इनोवा खराब कार नहीं, अच्छा कार। If you need it, please buy it. और यदि आपको जरूरत है तो खरीद लीजिए। But gospel is like true light that gives light meaning. Come to Jesus. Everybody is going to praise you now. और सच्चा जो सुसमाचार है क्या वो ये है कि यीशु के पास आओ, सब तुम्हारी तारीफ करेगा। Nicodemus came to the true light. निकोदेमुस सच्ची ज्योति के पास आया। First experience is rejected. पहला अनुभव उसका यह है कि सारे लोग उसका इनकार कर रहे थे। Everybody is speaking against Nicodemus. सारे लोग निकोदेमुस के खिलाफ में बात कर Are रहे। you a Galilean? Shame, shame. क्या तू गलीली है? शर्म करो अपने ऊपर।
What did Nicodemus respond to that? और इसके बारे में निकोदेमुस ने क्या बोला? Who is the smartest person in the room? Let me hear again. क्या था वो जवाब? मैं देखना चाहता हूँ कौन स्मार्ट है। What did Nicodemus respond? निकोदेमुस ने क्या बोला? क्या है जवाब? No response. कोई जवाब नहीं दिया। In chapter 3, no response. तीसरे अध्याय में भी कोई जवाब नहीं। When Jesus asked, do you not know these things? No response. क्या तू इन बातों को नहीं जानता है? कोई जवाब नहीं। Here, his friends asked him, are you a Galilean? यहाँ उसके दोस्तों ने पूछा क्या तू गलीली है? No response. कोई जवाब नहीं। Nicodemus is a special person. और निकोदेमुस एक बहुत खास व्यक्ति। Do you see Nicodemus again in this gospel? क्या इस सुसमाचार में फिर से निकोदेमुस आपको दिखाई देता है? Chapter 3, you saw him. तीसरे अध्याय में देखा। Chapter 7, you saw him. सातवें अध्याय में हमने He देखा। came to Jesus in the night, रात में वो यीशु के पास आया, but he came to the true light. लेकिन वो सच्ची ज्योति के पास It आया changed his mind. और उसने उसके दिमाग को बदल He दिया। is struggling about decision making. अब वो निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। You will see Nicodemus one more time in John's gospel. और यूहन्ना के सुसमाचार में एक और बार आप निकोदेमुस को देखें। Chapter 19 and verse 38. 19 के 38 में आप उसे देखें। This is what true light will do to us, my dear people of God. और सच्ची ज्योति हमारे साथ कुछ ऐसा करती है। True light that gives light to every man. That every man is including religious, spiritual, wealthy Nicodemus. और वो हर मनुष्य में ये धनी आत्मिक निकोदेमुस भी आता है। You know what is the scenario in chapter 9 where you see Nicodemus for the last time? और 19वें अध्याय में जो आखिरी बार हम निकोदेमुस को देखते हैं वो कब देखते हैं? Jesus is crucified. यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए His body is full blood. और उसका पूरा शरीर लहूलुहान है। His face, his hairs, his hands, his back, it's all bruised. और उसका जो चेहरा है, उसका सिर, उसके हाथ, उसके पीठ सब कोड़े के कारण वो अब पहचान में नहीं आ रहा। People in good sense will only look once at the body of Jesus. और जो लोग सचमुच में अपने होश में हैं वो यीशु को सिर्फ एक ही बार देख पाएंगे। But Nicodemus, लेकिन निकोदेमुस, look at chapter 19:38. और 19 के 38 को देखिए। Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. और अरमतिया के यूसुफ ने यीशु के शरीर को मांगा। Now Joseph was a disciple of Jesus secretly with the Jewish people. Verse 39, he was accompanied by Nicodemus. लेकिन उसके साथ जो वहां पे आया था वो 39 में हम देखते हैं निकोदेमुस था। But there is something very clearly John is writing. और कुछ खास वहां पे यूहन्ना उसके बारे में लिख रहा है। He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. निकोदेमुस भी जो पहले यीशु मसीह के पास रात में आया था। Who will write like this? और कौन इस बात को लिखेगा? Why you want to write Nicodemus who went to Jesus earlier at night? Why you want to say at night? क्यों दोबारा इस बात को वहां पे यूहन्ना ने लिखा कि वो रात को गया था? You can just say Joseph of Arimathea, Nicodemus was with him. Nicodemus had earlier seen Jesus finish. और वहां पे वो लिख सकता था कि अरमतिया का यूसुफ और साथ में निकोदेमुस था जो यीशु मसीह को पहले से जानता था। But why John is writing Joseph of Arimathea, dead body of Jesus, he was accompanied by Nicodemus who went to Jesus earlier in the night. क्यों यूहन्ना लिख रहा है कि यूसुफ के साथ निकोदेमुस था जो पहले रात में यीशु मसीह के पास गया? That is for us to know, if you come to the true light, it will change your life. और ये हमारे लिए है कि हम जाने यदि आप सच्ची ज्योति के पास आते हैं वो आपके जीवन को बदल देता Can है। you imagine this rich man, this religious leader is embalming the body of Jesus. और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये धनी व्यक्ति, ये आत्मिक व्यक्ति वहां पे यीशु मसीह के शव पे उस इत्र को लगा रहा है? You know what did Nicodemus do? आपको पता है निकोदेमुस ने क्या किया? Nicodemus brought a mixture of myrrh, aloes, about 75 pounds he brought. और उसने उस जगह पे ये लिखा हुआ है कि सुगंधित द्रव्यों को उस जगह पे निकोदेमुस लेकर के आ रहा है। People who study scriptures carefully, they say this kind of expense is done only for kings, king.
और जो लोग अध्ययन करते हैं इन बातों का वो ये बता सकते हैं कि इस तरीके से सिर्फ राजाओं के शव को वहां पे किया जाता था। For ordinary person, this kind of money is not spent. और किसी साधारण व्यक्ति के लिए इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया जाता। Nicodemus brought all his wealth to the dead body of Jesus. निकोदेमुस ने अपने सारे पैसे को यीशु मसीह के शव के लिए उस जगह पे वो लेकर के आया। Do you want true light to come and change you? क्या आप चाहते हैं कि सच्ची ज्योति आकर के आपको बदले? Then what comes out is sacrifice. तो जो आपके अंदर से बाहर आना चाहिए वो है What बलिदान। comes out is not love of money. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पैसे का प्यार हो। What comes out is not I want respect, I want honor. No. What comes out is I am willing to hear this. और जो अंदर से हमारे निकल के आना चाहिए वो ये नहीं कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे धन चाहिए, लेकिन ये कि मैं जानना चाहता हूं। I am telling you, my dear people of God, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, many people in Christendom today, they are like Nicodemus in chapter 3. और आज मसीह दुनिया में बहुत सारे लोग तीसरे अध्याय के निकोदेमुस के समान हैं। They know Bible. वो बाइबल जानते हैं, They can sing well, वो अच्छा गा सकते हैं, but they are in the night. लेकिन वो रात में है। How do you know? आपको कैसे पता? Look at their life. उनकी जीवन को देखिए, There is no sacrifice. उनके अंदर से कोई बलिदान There is बाहर no नहीं आता। love for Jesus. यीशु के लिए कोई प्यार नहीं। But true light that gives light to all men was coming into the world. लेकिन सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देती है वो दुनिया If में आ that रही है। light comes to our life, यदि वो ज्योति हमारे जीवन में आएगी, then we will look at Amazing Life Church. God has brought me to this church. और हम ऐसा देखेंगे कि अमेजिंग लाइफ चर्च जिसमें ये परमेश्वर ने मुझे लाया है, What can I do for this church? इस चर्च के लिए मैं क्या कर सकता हूं? What can I do for the kingdom of God in Ranchi? और रांची में जो परमेश्वर का राज्य है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? Can I do something with my health? क्या मैं अपने स्वास्थ्य के द्वारा कुछ कर सकता Can हूं? I do something with my money? क्या मैं अपने पैसे से उसके लिए कुछ कर Can I सकता do हूं? something with my influence? क्या मैं अपने प्रभाव से उसके लिए कुछ कर These सकता kind हूं? of people will go to the pastors. Pastor, please tell me what can I do for the church? और ऐसे लोग पास्टर के पास जाके बोलेंगे, पास्टर बताइए मैं चर्च के लिए क्या They करूं? are not worried about what they will get from the church. और उन्हें इसकी चिंता नहीं कि चर्च से उन्हें क्या मिलेगा। They are there to give to the church. वो वहां इसलिए है कि वो चर्च को दे सके। Like Nicodemus, he gave everything to Jesus. जैसे ही निकोदेमुस ने अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया। Who wants the body of Jesus? और किसे यीशु मसीह का शव चाहिए था? Nobody wants. किसी को नहीं चाहिए था। Where is Peter? पतरस कहाँ था? Where is Matthew? मत्ती कहाँ था? Where is John? यूहन्ना कहाँ था? Nobody is there. कोई नहीं था। Only the man who had that encounter on that night. और सिर्फ वो व्यक्ति जिसने उस रात यीशु मसीह के साथ जिसका सामना He हुआ, sold everything. उसने सब कुछ बेच दिया He is coming to Jesus. और वो यीशु के पास आ रहा है। Something which is not there in the Bible, but which is there in the history. I will stop with that. और ऐसा कुछ जो बाइबल में नहीं है लेकिन इतिहास बताती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। What happened to this man? इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? One day, one rabbi was walking towards Jerusalem. एक दिन एक गुरु, एक रबी यरूशलेम की ओर जा रहा था। He saw a girl eating from trash. उसने देखा कि एक लड़की वो कूड़े में से कुछ उठाकर खा रही थी। The history writing says this rabbi stopped, और इतिहास के लेख ये बताते हैं कि वो रबी रुक गया। asked her, what happened? उसने उससे पूछा क्या हुआ? Who are you? तुम कौन हो? Answer was, I am Nicodemus's daughter. और जवाब ये आया कि मैं निकोदेमुस की बेटी हूं। Where is Nicodemus after this? और इसके बाद निकोदेमुस कहाँ है? He was thrown out from Palestine because he did this. और उस जगह से निकोदेमुस को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने ये काम किया। Jewish people killed Jesus. यहूदी लोगों ने यीशु को मार डाला। They didn't like what Nicodemus did. उनको ये पसंद नहीं आया जो निकोदेमुस ने He किया was out of Palestine. और उसे उस फिलिस्ती देश से बाहर निकाल His दिया। family struggled. उसका परिवार संघर्ष करने लगा। What will happen to you? What will happen to me? आपके साथ मेरे साथ क्या होगा? Jesus is telling true light has come. यीशु कह रहे हैं सच्ची ज्योति आ गई है That gives light to every man. जो सारे मनुष्यों को ज्योति देता है। What does that mean?
इसका मतलब क्या है? This light is not talking about health and wealth. और ये हमारे स्वास्थ्य और धन के बारे में बात नहीं कर रहा है, This light is talking about eternal life that we have through Jesus. और ये उस अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है जो यीशु के द्वारा हमें मिलता है। If God's coming tarries 100 years from now, none of us will be here. और यदि यीशु मसीह नहीं आते हैं तो आज से 100 साल के बाद हम में से कोई जीवित नहीं रहेंगे, 50 years from now, half of us will not be there. और आज से 50 साल बाद आधे लोग हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। Oh, you pastor, annual convention I have come and you are telling me I won't be here? और पास्टर मैं एनुअल कन्वेंशन के लिए आया हूं, आप बोल रहे हैं कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। That is true. और ये सच है। Before the next annual convention, what all will happen? और अगले एनुअल कन्वेंशन के पहले पता नहीं क्या क्या हो सकता है। We have not come to Jesus for a safe and comfortable life. No. और हम यीशु के पास एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन के लिए नहीं आए, We have come to Jesus so that we can have amazing life, meaning life with Him. और हम यीशु के पास इसलिए आए हैं कि हमें एक अमेजिंग लाइफ मिले, वो जीवन जो उसके साथ है। Jesus gives us hope for the future. यीशु मसीह हमें भविष्य के लिए आशा देते हैं। Nicodemus gave everything because he knew there is a treasure there. निकोदेमुस ने सब कुछ छोड़ दिया और उस धन को पा लिया जो वहां उसके लिए था। Then this evening I want to ask all of you, और इस शाम मैं आप में से हर एक से पूछना are चाहता हूं, you like Nicodemus in chapter 3 or are you like Nicodemus in chapter 19? क्या आप तीसरे अध्याय के निकोदेमुस के समान हैं या 19वें अध्याय के निकोदेमुस I के समान? want to be like Nicodemus in chapter 19. मैं 19वें अध्याय के निकोदेमुस के जैसा When बनना I चाहता हूं। decided to serve the Lord, all my friends, my relatives told, don't go for this. और जब मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूं, मेरे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने बोला मत करो। Your dad is already in ministry, struggling. You also want to go preach about Jesus. तुम्हारे पापा पहले से मिनिस्ट्री में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, क्या तुम भी जाके यीशु का प्रचार करना चाहते You हो? will struggle for money. और तुम्हें भी पैसे के लिए संघर्ष Go होगा। and work and live a happy life. जाओ काम करो और एक अच्छा जीवन बिताओ। But I still remember that day. और लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है। Around 15 years back, 15 साल पहले Jesus has given himself to me. यीशु मसीह ने अपने आप को मुझे दिया। What can I give to him? मैं उसे क्या दे सकता हूं? I want to give myself to him. मैंने अपने आप को उसे दिया, My health, मेरे स्वास्थ्य my को, energy, मेरे ताकत को, all I have. सब कुछ जो मेरे पास Now था। 2 babies also have come. और अब 2 बच्चे भी मेरे आ गए, All what I have, और कुछ सब कुछ जो मेरा है it is for Jesus. ये यीशु के लिए। We are not here to use Jesus. We are here to be used by Jesus. और हम यहाँ पे यीशु मसीह का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे है कि यीशु हमारा इस्तेमाल अपने लिए कर Will सके। you stand to your feet and we are going to pray together? और क्या हम खड़े हो सकते हैं कि The हम इससे true प्रार्थना करें? light that gives light to all man was सच्ची coming. ज्योति जो हर मनुष्य को ज्योति देती है आ गई। This har manushi includes Nicodemus. और इस हर मनुष्य में निकोदेमुस भी है। Nicodemus needs this light. निकोदेमुस को ये ज्योति चाहिए। This light is not for comfortable life. और ये आरामदायक जीवन के लिए नहीं है। This light is to experience Jesus. और ये ज्योति यीशु का अनुभव करने Come on, के लिए। lift your hands in the presence of God. और उस यीशु के उपस्थिति में अपने हाथों को Let's उठाइए। not finish this without making a commitment before the Lord. और बिना किसी कमिटमेंट के आइए इस रात को हम खत्म I ना want all करें। of you to lift your hands and ask the Lord, Lord, help me to become like Nicodemus in chapter 19. और परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं 19वें अध्याय के निकोदेमुस के समान बन जाऊं। Oh Lord, let the true light come into my life और वो सच्ची ज्योति मेरे जीवन में प्रवेश so that करने I will पाए, worship you with all my heart, ताकि मैं पूरे दिल से आपकी आराधना so करूं that I will serve you with all my might. और अपने पूरे जीवन से आपकी सेवा करूं। Amazing Life AG Church, Amazing Life Church, God is calling you today. अमेजिंग लाइफ चर्च परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। God is calling the church to be a church which will be known for sacrifice. और एक ऐसी कलीसिया बनाने के लिए जो अपने बलिदान के लिए जाना जाता The है। true light will shine in the church. और वो सच्ची ज्योति इस कलीसिया में चमकेगी। And the result will be serving and sacrifice. और उसका परिणाम होगा कि हम बलिदान के साथ उसकी And the सेवा करें। result will be amazing life. और हमारा जीवन अद्भुत जीवन हो This जाए। amazing life is sacrificial life. और ये अद्भुत जीवन एक बलिदान का जीवन This है। amazing life is serving life. और ये अद्भुत
कुछ जीवन सेवा का जीवन Come है। on, put your hands together and give God a praise tonight. और तालियों को बजाकर आज उसकी महिमा करें। Everybody, give a praise to God. Jesus, the true King. यीशु वो सच्चा राजा।